What is it? कोको यहाँ पर abundant कोको होती है यहाँ पे. It is the second largest exporter in world में, second largest exporter of the cocoa. And the quality of the cocoa is very good. Even though there are cocos coming from like even from the east side, like Vietnam and what do you call Burma. This country also they produce cocoa, but the quality of the cocoa which is there produced in Ghana is the very superior. Ghana and Ivory Coast. So Ghana is the second largest producer of the cocoa. Oh, I see. Wow. यहाँ पर भी एजुकेशन सिस्टम है जो यहाँ पर नॉर्मली इट इज 11+4 11 ईयर की स्कूलिंग है और 4 साल का ग्रेजुएशन है. उसके बाद में एनीबडी कैन डू द पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक इन इंडिया like masters and PhD and that. There are a good number of universities available. The here advantage is there those who are studying, especially even Indian expats और जो भी यहाँ के लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. They have got good opportunities to get it admission into the especially European countries, whether it is UK, Germany, or Hungary, any of the European country or the US. So these people they have got a good contact over there, and number of universities keep coming here to take the students, and they give the quite good number of scholarship for the African or those who are studying in Africa. तो मतलब काफी अच्छा स्कोप हो जाता है. और अगर देखा जाए तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम दो में इट विल नॉट बी एज कॉम्पिटिटिव एज इंडिया, नो डाउट अबाउट इट. तो खासकर जो बच्चे इंडिया से आते हैं यहाँ पे, India normally because they came from the competitive environment and they do very good here. Once they do very good here, they got a much more advantage than the local people to get the university admission into the big university in whether US or UK जो भी है करके. तो यहाँ पर ज्यादा करके एक्सपर्ट्स के जो बच्चे हैं वो सब बाहर पढ़ने ही जाते हैं, या तो UK और US मोस्टली. Now, these were all the much of the technical thing which I was talking to you, whether related to economy, democracy, politics, education system. Abhi now, when we come to the general public, they are very peace-loving people. जैसे अमिताभ भाई साहब ने शुरू में बताया था कि जो आप लोगों को छोटी मोटी जानकारी यहाँ के बारे में बताई है कि यहाँ के लोग काफी पीस लविंग पीपल है. मतलब पिछले 15 साल से हम लोग वहाँ पर रहे हैं, तो मैंने आज तक का स्ट्रीट फाइट देखी नहीं है. कोई दो जनों को रास्ते पे लड़ते हुए कभी नहीं देखा है. एवरीबडी फॉलो द डिसिप्लिन. आप बिलीव नहीं करेंगे, जब कोविड हुआ था तो हम लोग भी यहीं पर थे, सारे लोग भी यहीं पर थे हम लोग. तो कोविड के समय पर देयर यूज्ड टू बी एड्रेस फ्रॉम प्रेसिडेंट. एवरी 2 weeks ही यूज्ड टू एड्रेस द पब्लिक, जनरल पब्लिक. जिस समय वो एड्रेस करता था, आप बिलीव करेंगे, रोड पर एक बंदा नहीं दिखता था. एवरीबडी यूज्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. एवरीबडी यूज्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ द टीवी और द रेडियो जो भी होगा, and they used to listen thoroughly. और जो उन्होंने बोला है, everybody used to just follow blindly. मजाल है कि मतलब कोई बाहर निकल रहा है या फिर पुलिस उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, कोई वाक्य नहीं देखने को मिलता था. तो they were very disciplined. That is one of the reason even though COVID very badly affected India, other countries, America, Europe, everywhere, बट यहाँ पर उसका इफेक्ट नहीं आया. इवन दो इंडिया की तरफ से कोविशील्ड भेजी गई थी, वैक्सीनेशन काफी भेजा गया था, तो मतलब इट इज सॉरी टू से दैट मोस्ट ऑफ द वैक्सीन वेंट विदाउट यूजिंग, दे गॉट एक्सपायर्ड. बिकॉज लोगों को वैक्सीनेशन करने से इट विल बी हार्मफुल. And most of the people, I can say like that, 70 to 80% of the public, they have not taken the vaccination.
इवन लाइक अंकिश के कंपनी में तो उन्होंने बोल दिया था अगर वैक्सीन नहीं लोगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो पीपल लेफ्ट द जॉब बट दे डिड नॉट टेक द वैक्सीन। इस तरह का हाल था। तो अब वो इसीलिए था क्योंकि these people they followed the whatever the president was telling, they were following all the sanitation norms and all what was required and all, so they were able to come out of that. Now coming to further discipline, like आप यहाँ पर बड़ी बड़ी कारें देखेंगे, छोटी भी हैं पर लेकिन कभी आप ये नहीं देखेंगे कि रोड पर चलते हुए कोई हॉर्न देगा के। Nobody horn the road on the road for any reason. Nobody gives the horn. और सारी की सारी कारें हैं, कितना भी रश होगा, कुछ भी होगा, they will follow only the one lane. Even आपकी रोड काफी चौड़ी हैं, जो पर्टिकुलर सिटी में रोड है वो काफी चौड़ी हैं, पर लेकिन अगर वो एक रो है तो they will follow एक रो, even though second रो खाली भी होगी, but nobody will try to go from there and on. They will see that everybody is following the same lane and they go without honking. अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है जो कि मतलब ब्लिंकर दे रही है या हॉर्न देते हुए जा रही है या पुलिस की गाड़ी है, they give the या एम्बुलेंस है, they will come to the side, they will give the further road for them to go back. हाँ, अगर इमरजेंसी में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने अपनी दोनों लाइट ब्लिंक करके चले गए तो nobody will ask you the question. You can go just like that. They will not stop why somebody is going and all. They know it. If somebody is going, they got an emergency. That is the reason they are putting the blinker and they are going it. So that way, the country follows the rules and regulations very strictly. खासकर भारतीय लोगों को, इंडियन लोगों को, they give very high respect. They got a very good what you call image of the Indian. Especially मोदी आने के बाद में तो ज्यादा ही बढ़ गई है, no doubt about it. पर पहले से भी, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर कल्चर है, they give the respect to the people, they have got a family system, the family they stays together. तो ये सब चीजें उनको काफी अच्छी लगती हैं। और उसके साथ अभी तो क्या हो गया है कि मतलब हिंदी जो चैनल है, कुमकुम भाग्य हो गया, इस तरह के कई चैनल यहाँ पर उनको उनके लैंग्वेज डब करके देख रहे हैं वो लोग। तो दे रियली फील प्राइड कि किस तरह का सिस्टम है इंडिया में, एंड दे रियली लाइक टू कोप अप विद दैट। तो उस तरह में देखें तो दे गॉट अ वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन पीपल। नाउ अनदर थिंग व्हिच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, इट इज टोटली रिवर्स फ्रॉम इंडिया, इज यहाँ पर देयर इज नो सेलिब्रेशन फॉर द बर्थ और द वेडिंग। बर्थ और वेडिंग की इतने सेलिब्रेशन नहीं होते हैं। हियर द सेलिब्रेशन इज फॉर द डेथ। द फ्यूनरल इज अ बिग सेलिब्रेशन हियर। जिस दिन इंसान मरता है तो उसके लिए दे गॉट अ सेलिब्रेशन। दे से दैट ही हैज गॉन टू गॉड, he has come from God, he has gone to God. Now for that they organize like anything, you cannot believe it. मतलब आप बिलीव करना चाहिए कि मतलब there are different bank schemes available where you can start saving the money for the funeral, for your parent funeral or grandparent funeral, or for yourself funeral, so that your family will not be having an issue while celebration of the funeral. In general, minimum there were 3 days of celebration for the funeral. जैसे हमारे यहाँ शादी होती है उस तरह यहाँ पर funeral होता है। और funeral में भी they have got a proper invitation card. There were proper, first of all before making the funeral they make the committee. जो घर के बड़े लोग होंगे या जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे वो सब मिलके एक कमेटी बनाएंगे। उसका वो लोग प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, फिर उसका ट्रेजरर सिलेक्ट करते हैं, सेक्रेटरी सिलेक्ट करते हैं। सेक्रेटरी का काम होगा हर एक को इन्विटेशन वगैरह देना, हर एक को कांटेक्ट करके। ट्रेजरर का काम होगा कि सारे पैसे क्या कैसे हिसाब रखने का, कौन कितना दे रहा है वगैरह सब करके रहेगा। और प्रेसिडेंट उसका जो घर का एक मेन मेंबर रहेगा वो प्रेसिडेंट रहेगा। तो उस तरह से वो लोग कमेटी बना के देन दे डिसाइड ऑन टू द व्हेन टू डू द फ्यूनरल। फ्यूनरल ऐसा नहीं हो कि हमारे यहाँ जैसे अगर डेथ होगी तो वी वांट टू सी दैट
The body is not kept. It is disposed as early as possible, जिससे कि घर वालों को ज्यादा दुख ना हो करके। पर यहाँ का फंडा कुछ और है। यहाँ पर ऐसा हो गया कि वो जानते हैं कि अगर हमारा जो रिश्तेदार है जो भी चला गया है वो भगवान के पास गया है, तो दे डोंट हैव दैट मच ऑफ वीपिंग एंड ऑल। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, इसको रख देते हैं मोर्चरी में। मोर्चरी यहाँ पे इतनी बढ़िया मोर्चरी है जिसका मतलब इट इज मच बेटर देन हॉस्पिटल्स। इट इज वेरी नीट एंड क्लीन। यू कैन गो देयर, यू कैन कम बैक, यू विल नॉट हैव a smell, nothing. And they keep the body such that even after 6 months you take out the body, you find that it is as fresh as it was. तो ये लोग अभी क्या करते हैं कि मतलब ये बॉडी को मोर्चरी में रख दिया जाता है, फिर जो कमेटी बनती है वो सभी लोगों से, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करके then they ask him when we want to do the funeral. तो मोस्ट ऑफ रिश्तेदार हैं, कई रिश्तेदार यूएस में, कई यूके में, कई और कंट्री में हैं, हर एक से उनका कब वो लोग फ्री होंगे वो हिसाब से उनके डेट लेके फिर बाद में ऑर्गेनाइज करते हैं कि कब किया जाए फ्यूनरल। तो किसी का 6 महीने बाद होता है, किसी का साल के 2 साल बाद भी फ्यूनरल किए जाते हैं। और फ्यूनरल जब करते हैं then everybody come, it's a 3-day function. They have got proper DJ available in the funeral. There is a dress code, and the first day they will wear like this, second day they are like this, and third day like that. Then there is a proper ceremonies going on for the feeding, other things and all, and then they ultimately bury it. तो जिस तरह में देखा है तो मतलब it is totally river. We start weeping and all. We want to see that it is as early as possible. Body is gone and all, but these people they keep it and they do the funeral as a celebration. पर कभी-कभी बहुत अजीब लगता है उनको भी, मतलब हम लोगों को भी लगता है, उनको भी दिल में लगता होगा कि समझ में आती है जिसकी मतलब उम्र हो गई हो और वो चला गया तो समझ में आता है। पर कई बार ऐसा होता है कि कई यंग लोग भी चले जाते हैं, जैसे जिसकी 35-40 ईयर की एज में ही चला गया और उसका परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, 2 बच्चे हैं, बीबी है और वो खत्म हो गया। तो उस तरह का जब वो सेरेमनी होती है इट इज वेरी पेनफुल टू सी, क्योंकि एक तरफ तो बीबी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन वहां पर एक तरफ डीजे भी चल रहा है और डांस भी चल रहा है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही विचित्र तरह की अनुभूति मालूम पड़ती है जब ये देखा जाता है। तो नाउ कमिंग टू वन मोर थिंग विच इज टोटली डिफरेंट देन इंडिया और एनी अदर कंट्री, वेदर वेस्टर्न कंट्री और इंडिया एंड ऑल, यहाँ का रिलीजन। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको शुरू में बताया था मैंने कि ये लोग जो बेसिकली दे आर फ्रॉम ट्राइब, दे आर कन्वर्टेड इनटू आइदर मुस्लिम और दे आर कन्वर्टेड इनटू द क्रिश्चियन। तो यहाँ पर आप कई फैमिली ऐसी हैं जिनमें कि हस्बैंड इज मुस्लिम एंड वाइफ इज अ क्रिश्चियन, और वाइफ इज अ मुस्लिम एंड हस्बैंड इज अ क्रिश्चियन, लाइक दैट। और बड़ी बात तो ये होती है कि कभी कभी तो कभी आश्चर्य लगता है कि जो हस्बैंड था मुस्लिम था, आफ्टर 2 months वी कम टू नो दैट ही हैज बिकम क्रिश्चियन। और वैसे ही वाइफ का भी होता है, कभी कभी मालूम पड़ता है वो पहले क्रिश्चियन थी पर लेकिन वो मुस्लिम हो गई। तो हियर रिलीजन डजंट हैव मच ऑफ द इफेक्ट ऑन टू देयर पार्टनरशिप और व्हाटएवर इट मे बी। So this is something very difficult for people who come from India or from the other side of the world to understand their religion. So religion, you can say like it's a non-religion country. There is no religion at all, and they have their own way of faith, understanding the faith, and that faith also keeps changing from time to time. What they feel like that. और हाँ, एक और सबसे बड़ी चीज, विचित्र चीज है यहाँ की कि यहाँ पर शादी का वैसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है कि शादी होगी उसके बाद में ही आगे रहेंगे वगैरह। यहाँ पर शादी के पहले ही लड़का लड़की साथ में रहना शुरू कर देते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं। कई बार तो ये लोग वेडिंग का प्रोग्राम रखते हैं, मालूम पड़ा रहता है उनके साथ में बच्चे भी उनके हैं, तो वेडिंग इज अटेंडेड बाय द चिल्ड्रन आल्सो समटाइम। तो ये भी एक बहुत कुछ चित्र है। और खास करके प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो यहाँ के जो जनरेशन है, मतलब जो मेल्स हैं
दे आर वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मेल्स. डिफरेंट इन द सेंस कि मतलब शादी तो हो जाती है कि पर वो कितने साल या कितने महीने या कब तक रहेंगे अपनी बीवी के साथ में, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टे फॉर फ्यू ईयर. एक और दो चिल्ड्रन होने के बाद में फिर वो बीवी को छोड़ देते हैं. नो, बीवी हैज टू अर्न ऑल्सो, अपने बच्चों को भी पढ़ाने, अपना भी खुद का भी ख्याल रखने का है. तो इस तरह से वो मतलब अगर देखा जाए तो लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है यहाँ पे. तो वो सब देखते हुए जो यहाँ की लेडीज हैं, दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ की जितने भी बिजनेसेस हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस which are there, whether it is a retail or wholesale or in the banking system also, it is all been headed by the ladies. तो जितने भी बड़े बड़े मतलब बैंक्स में भी आप जाएंगे तो आप मिलेंगे जिनके रिलेशनशिप मैनेजर हो गए या आपके एमडी हो गए, मोस्ट ऑफ देम दे आर लेडीज दे ड्राइव द बिग बिग कार्स, नो डाउट अबाउट इट. जो गरीब लेडी हैं वो भी बेचारी वो जो भी होंगी करके पर दे स्टार्ट डूइंग द ट्रेडिंग एंड ऑल, and they run their own family themselves. They don't depend on the husband. They are, most of the boys, they are of not that nature as in India or other places. They just want to enjoy their life and they go here and there, that's all. So that way, the ladies are very enterprising. The economy is run by the ladies actually in Africa. Now, other thing which is Ghana is famous, I think you people must be knowing, is the football. Football is the very favorite game for them, and they are very strong in the football. Even in the World Cup, they have gone up to the semi-final. They have not gone to the final, but they have gone up to the semi-final. So you can understand, being the small country, having the population of 3.2, but they've gone up to the semi-final. Even now, the football team is good for them. And but right now, I can say like last 2-3 years they're not performing to go to the semi-final. But even it is good, much good. Another one thing which is disparity with India is smoking. Here, African or Ghanaian, they don't smoke at all. Generally, they don't smoke, and means especially Ghanaian, we have not seen smoking. They are very fearful. They are fearful to the smoking, and they know that if they smoke, they may get either the TB or cancer. That way, they don't smoke. And here, the drinks are very easily available. Means nothing like you require license. Or for the shop also, for the liquor you require license or something like that. Even liquor is available even in the grocery shop or the corner shop of the road. Beer is most commonly drunk even by the lady or gents or anybody. It is available in all the hotels. You don't require permit like India to have a beer or a beer bar or something like that. Even though liquor is so freely available, you will not find even a single person drunk or fighting with anybody, drunken or driving and then hit and all. No. They drink it, but they drink very responsibly and they see to it. They don't trouble when they drink, they don't trouble to other people. These were all the few things what I could gather till now. And I shared with you. So now if you have any questions, you can definitely ask me. So I can more elaborate it. सर इतना डिसिप्लिन वहां पे कैसे है? बिकॉज पीपुल आर नॉट सो मच लिटरेटेड, नो? इतना डिसिप्लिन, मैंने इतना डिसिप्लिन कैसे है और इतना उनमें धीरज कैसे है? इतना लंबा चौड़ा बॉडी, और उसके बाद हमने कभी किसी को लड़ते हुए ऊंची आवाज में, जो आपने कहा
बात करते हुए नहीं देखा। और जो इसी में जो जैसा है उसी में मगन है। हमने देखा कि रास्ते में अकेले जा रहा है एंड ही इज डांसिंग ऑल्सो, अपना करेक्ट। अकेला डांस करते हुए या गाना गाते हुए चला जा रहा है। इतनी मस्ती में कैसे रहते हैं ये लोग, मतलब क्या मतलब और जैसा आपने बताया वहां का कंडीशन बहुत अच्छा, एम्प्लॉयमेंट स्टेज नहीं है, नहीं, फिर भी बिल्कुल। लोग, हाँ बहुत अच्छा, मतलब वहाँ के लोकल पीपल। एंड व्हाट इज द रीजन आई डोंट नो कि गोल्ड माइंस इतना, गोल्ड माइंस वहां पर इतना है, बट दैट इज एक्सट्रैक्टिंग पावर, माने काम कोई फॉरेनर्स आके करता है और उसको सोना निकाल करके फिर उसके बाद दुबई भेजता है और दुबई में फिर रिफाइन करके यहाँ आता है, डबल कॉस्ट में खरीदता है। हमको कोपी साहब ने बताया था ये सब। तो और उसके बाद इतना महंगा, फिर अपने ही नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करके रिच बनने की ख्वाहिश भी उनकी नहीं है। और जितना मिल रहा है बस उतने में पी पा के अपना आराम से खुश है, खुश रहते है। हैं, खुश है, हाँ इतना खुश है, ऐसा कैसे। और कभी गुस्सा नहीं आता है इन लोगों को, कोई मतलब गुस्सा नहीं, गजब। सही बात। हाँ, मेड सर्वेंट वगैरह को देखा हमने, आपके यहाँ भी देखा, वो सिद्धार्थ के यहाँ भी देखा, अम्बरीश के यहाँ भी देखा। कभी किसी से मतलब कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। कोई नहीं करता है। जबकि वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी, इंडिया में तो हर बात पे लड़ाई, हर बात पे बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आर्गुमेंट, मतलब हम ज्यादा हैं, हम ज्यादा हैं इसमें, शो में, और ये लोगों को डाउन करने में हम लोग इतना लगे रहते हैं। इसका क्या कारण है उन लोगों में? मैं बताता हूँ आपको। आपने एक चीज तो बताया, पूछा कि ये लोगों में इतना पेशेंस क्यों है, ये लोग झगड़ते क्यों नहीं है। एक हाँ, तो पहली बात ये पूछी, और दूसरी आपने पूछी, क्या पूछा दूसरा आपने दूसरा कि पूछा कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज की ये लोग यूटिलाइज करके हाँ, रिच बनने की इच्छा क्यों नहीं रखते हैं? मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये आपने जो बोला वो बराबर है कि ये लोग इतना एग्रेसिव क्यों नहीं रहते हैं। अभी इसके पीछे भी हिस्ट्री ये है, जहां तक मेरे को मालूम पड़ती है, कि पहले यहाँ के लोग भी काफी एग्रेसिव होते थे, हम्म, और हर बात में यहाँ पे पोजीशन होता था वगैरह वगैरह। तो बीच में जब 1957 के इंडिपेंडेंस के बाद में इनको जब एनकुमा थे प्रेसिडेंट थे, और 2 टर्म होने के बाद में जब, तो देयर वाज ए सम अनरेस्टफुलनेस इनटू द कंट्री। और उस समय फिर अनरेस्टफुल इतना बढ़ गया कि अल्टीमेटली द कू वाज देयर। तो कू में काफी लोगों की जाने गई थी, काफी लोगों को अंदर किया था, और इन लोगों ने काफी लोगों को बहुत तकलीफें देखी थी। मतलब कई लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ा था। तो वो जो उन लोगों के बीच में जो डर बैठा हुआ है हम्म, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कि गवर्नमेंट ने अगर दे आर एबल टू नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, दे विल गो टू द एनी एक्सटेंट। तो वो डर के कारण नाउ वो सहमे हुए हैं। मतलब उसके बाद में वो जो कू हुआ था उसके बाद में देन पीपल आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ प्रोसेशन और टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो एक बात है। हम्म, तो वो एक समझ में आती है बात। और जहां तक का ये पैसे का बात है कि यहाँ से सोना बाहर चला जाता है या मिनरल चले जाते हैं, वो सोना यहाँ पर वापस आता नहीं है। जो आता हो तो थोड़ा बहुत ही आता होगा। मतलब जो अगर 140 टन जाता है यहाँ, तो एक टन भी वापस नहीं आता होगा। तो अच्छा जो अच्छा, जाता है वो जाता है यहाँ से, और वो आता कुछ नहीं है। ना तो अच्छा सोना अच्छा, आता है ना पैसा आता है। हम्म, वही सारा खेल है कि मतलब किस तरह से जाता है यहाँ से, और फिर उसका हम्म, पैसा नहीं आता। वो एक कारण है जिसके कारण यहाँ के लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। हम्म। और दूसरा इतना नेचुरल फर्टाइल लैंड है जिसके बारे में भी वो भी बता रहे थे कि कोपे साहब की, इतना फर्टाइल लैंड है लेकिन उसको यदि हम लोग खेती करें तो इतना अच्छा अनाज, इतना अच्छा सब्जी वहां पे हो जिसको लोग करना नहीं चाहते। नहीं, वो तो बात यह है कि जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, कि यहाँ के लोग काफी सेटिस्फाइड है, हैप्पी है। हाँ हाँ, हैप्पी है उनकी कैसे? जरूरतें जो हैं, उनकी जरूरतें अगर आप देखा जाए तो उनकी जरूरतें जो हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें हो जा रही हैं। हम्म, और वो जो उनकी जो आकांक्षा है, जो हम लोगों में जैसे इंडियन लोगों में जो आकांक्षा है आगे बढ़ने की या और करने की, वो नहीं देखी जाती है। वो क्यों नहीं देखी जाती है? दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ द जीन्स, या ट्राइब से आए हैं वगैरह वगैरह।
क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लैंड इतनी फर्टाइल है, आप अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जाएंगे तो आपको दोनों तरफ एकदम ग्रीनरी दिखेगी पहली बात तो, और यहाँ पर आपको बनाना, मौसम्बी और केला, मौसम्बी, पाइनएप्पल, ये तो ऐसे ही लगे हुए दिखेंगे साइड में, मतलब जस्ट नेचुरली ग्रोइंग इट। तो जहाँ वहाँ के आसपास के लोग हैं, फॉर देम इट इज जस्ट लाइक यू प्लग द फ्रूट, प्लग द थिंग्स एंड यू आर एबल टू ईट इट। उनकी रिक्वायरमेंट वहीं से खत्म हो जाती है। Maize is a very common stable food for them. They grow the maize and they use the maize in different form to make their food and all. So and good amount of non-vegetarian foods are available, like fish is available, then other like cow, goats and all, they eat everything. So that way they don't have much of the need for anything else. That is the one of the reason कि उनको इतना ज्यादा एंग्शियस नहीं है और कमाने की, जो उनको मिलता है उसमें वो लोग काफी खुश है। Sir, Hmm. sir, I have one question regarding to that. Sure. Sir, in India, that is the 50,000 to 1 lakh, that is sufficient to survive in the tier 2 city like that. But that's I have to know what a salary and what a earnings will be comfortable for the survive in that country, and what will be the average earning, like the in India the persons who are doing the bank are the bankers, railway employees, etc. They earn like the approximately 1 lakh, etc. That is and that is sufficient to survive comfortably. They can survive, they can live, they can manage their families, etc. So just we have to know if what will be the requirement earnings to survive in that country, and what is the average earning if they are the employee of the bank, railways, government sectors, teachers, etc. You put a right question. If you ask me like that, if you अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि मतलब इंडिया में आज की तारीख में कोई 80,000 से 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो अपनी फैमिली एक अपनी फैमिली ऑफ द 2 चिल्ड्रन एंड हस्बैंड एंड वाइफ वो लोग कंफर्टेबल रह सकते हैं। या बराबर है। तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इट टर्न्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली $1,000। $1,000 ठीक है। तो वही कैलकुलेशन में यहाँ पर अगर आपके पास में अगर $1,000 हैं, तो $1,000 में आपकी फैमिली अच्छे से रह सकती है यहाँ पर भी। And if you are doing the job like in the banks and the railway, etc., what will be the salary of the average salary? What will be? Now, good question. Now, if you ask me here that bank people, they get very, very good salary. Yeah. The banks, if you ask me here, the number of banks will be at least 35, 40. At least 35 banks will be there in Ghana. Different banks, mostly the private, except for the one government bank. Most of the people who are working in the banks, उनकी सैलरीज काफी अच्छी है। मतलब उनका जो रिलेशनशिप मैनेजर है या रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है 4x4 में आता है। हमारा जो अकाउंट्स मैनेजर होगा उसके पास में बेचारे के पास में या तो कौन सी गाड़ी होगी, हमारे सलून कार होगी, और या अच्छी वाली कोई टोयोटा की क्या बोलते हैं वॉक्सवैगन की पसाट करके होगी, इस तरह की सलून कार होगी। पर लेकिन उनका जो रिलेशनशिप मैनेजर आएगा 4x4 में आएगा। तो मतलब बैंक की सैलरी काफी अच्छी है। मतलब he'll be drawing not less than $4,000 to $5,000 per month. Oh, 4,000 to 5,000. नंबर 2, कमिंग टू रेलवे, यहाँ पर रेलवे एक और वो इन्फॉर्मेशन जो रह गई आपके साथ में शेयर करने की, कि इंडिया में तो बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवेज का। रेलवे इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड इन इंडिया इफ यू लुक एट इट। पर यहाँ पर रेलवे है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक रेलवे लाइन है जो कि घाना में चलती है, हार्डली इट रन फॉर 20 किलोमीटर। अदरवाइज और कोई रेलवे चल ही नहीं रही। जो कि ब्रिटिश लोगों ने डाल के गए थे इनके लिए, वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया। Yes, sir. It means I expect that $80,000, $1,000, that is that commensurate with the 80,000. That is sufficient for the comfortable life in that country also. 80,000 rupees per month salary in India, that is also comfortable here. जो लोकल लोग हैं उनके लिए। Okay, thank you, sir.
welcome sir for this. संतोष लोहरा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछिए। सर मेरे प्रणाम सर। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि आपने बताया कि जो मृत्यु के उत्सव की कहानी बड़ा रोचक लगा कि वह मृत्यु का भी इस तरह से उत्सव मनाया जाता है, जो कभी कभी विरोधाभासी प्रवृत्ति के कारण थोड़ा सा अचंभित करने वाला होता है, लेकिन फाइनली इसे इस रूप में स्वीकार करना बड़ा ही प्रेरक लगा। तो मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी आज़ादी के पहले जब वो लोग मुस्लिम और क्रिश्चियन में कन्वर्ट नहीं हुए थे, तो उनका कोई ऐसा कस्टम या कोई टैबूज आज भी एग्जिस्ट करता है जो उनके प्री इंडिपेंडेंस एरा में एग्जिस्ट करता रहा हो? ऐसा कोई अगर मतलब ऐसा कोई रिचुअल्स, कोई कस्टम जो कि कन्वर्जन के पहले जब ट्राइबल हुआ करते थे तो वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर आपकी जानकारी में ऐसा हो तो कृपया इशारा करेंगे। दूसरा सवाल ये कि जो भारत की आज़ादी की कहानी है कि एक तरफ गांधी जी थे, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह वगैरह, कई इंटीग्रेटेड अप्रोच से भारत आज़ाद हुआ, उसकी कांग्रेस वगैरह की एक इतिहास की कहानी रही है। तो क्या इस तरह जो 1957 में घाना आज़ाद हुआ तो उसके पीछे भी क्या कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की कहानी रही है? अगर है तो थोड़ा उसका इशारा करेंगे। ये दो प्रश्न सर। थैंक यू जी आपके क्वेश्चन के लिए। जहाँ तक ट्राइबल लोगों के जो आप पूछेंगे उनके किस तरह से इनके विधि विधान होते हैं मरने के बाद में या क्या करते हैं, वो उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है हम लोगों को, और क्योंकि उस तरफ हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट एंड आई विल नॉट बी राइट इफ आई एम कमेंटिंग समथिंग व्हिच आई डोंट नो। तो ट्राइबल वालों के उनका क्या सिस्टम है वो नहीं मालूम है, पर लेकिन यहाँ पर जो भी है वो तो इट इज सिस्टम ऑफ ब्यूरिंग इट, एवरीबडी इज ब्यूरिड, दे आर नॉट सिस्टम ऑफ द burning and all, but people after seeing the Hindu cremation, they are also opting for going for the electrified cremation and all. That is one thing. Now coming to independence era, they also had a independent struggle, but it was not that great like India. The history is not great or that much not released into the books and all. But there was a freedom struggle, which has been found that there are there were seven leaders, main leaders, who were involved into the for the pre-independence era, those who fought with the British people and all. तो उनके जो सातों की जो वो है फोटो है, they are normally put on their currencies. Okay, thank you so much sir. Thank you. मैरिज सर जैसे इंडिया में होता है, नाच गान, दिल्ली में, बम्बई में, जिस तरह से उत्सव मनाया जाता है, वैसे इन लोग क्या भी होता है क्या मैरिज में ये लोग का मैरिज का ज्यादा फंक्शन बड़ा नहीं होता है। मैरिज का नॉर्मली इट विल बी वन ऑफ द पार्टी मींस इट विल बी नॉर्मली ड्रिंक्स, इट विल बी द इवनिंग पार्टी, इट विल बी ड्रिंक्स विद सम स्नैक्स एंड ऑल, but it's not like so elaborate like in India for the 3-day function and all. It will be one function, or it will be a function into the church if they are the Christians. So one question, sir. Okay. Good evening, sir. I'm Siddharth. Sir, those non-residents Ghana, like Indian, those who die in Ghana, if their body is not taken back to India or some other countries from where they belong, are their dead body also been in the same way they take care of it, or in the other way? First question. Second question is, even in India, plenty tribals are there. Till now, for example, if there is one of the tribe in Northeast, they worship the hen, cock. So are they also worshipping in the tribal, in the like cock and all in the Ghana? The two questions, sir. Yeah. So now coming to Indian people, there are approximately 35 to 40,000 Indian available in Ghana, and presence of Indians काफी अच्छी है यहाँ पर। तो काफी मतलब यहाँ पर 5 मंदिर हैं, डिफरेंट 5 मंदिर हैं, गुरुद्वारा है, और वो सब देखते हुए इंडियन कम्युनिटी में अगर कोई डेथ हो जाती है
तो उस तरह से बॉडी को ट्रीट करने के लिए या उसकी जो अंतिम यात्रा निकालनी है या जो उनका वो जो भी करना है उसके लिए बराबर से वो सारे प्रबंधन हैं यहाँ पर। मतलब प्रॉपर क्रिमेशन ग्राउंड है जहाँ पर कि हिंदू लोग जाके उसका क्रिमेशन कर सकते हैं, और इवन इलेक्ट्रिकल क्रिमेटोरियम भी है जहाँ पर आपकी वहाँ पर आप कर सकते हैं। और कोई रखना चाहे अपनी बॉडी उसमें क्या बोलते हैं मॉर्चरी में, दे कीप इट वेरी नाइसली एंड ऑल एंड दे डू इट प्रॉपरली, तो उसमें कोई वो नहीं है। और यहाँ पर जो ट्राइबल, जो आपको जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था आपने ट्राइबल्स के बारे में, तो सम ऑफ द tribals are there, like what we have our Murti Puja and all. They also got their own gods, and they do some rituals for them. So that also I came to understand not from going to tribal area and all, but when I went to the museum, I understood that they also have got their own way of making the worshipping the particular type of thing. They have got some particular type of of the stone and all, and they pray for them. They have got a ritual like that. They may not be putting the agarbatti or something like that, tilak and all, but they have their own way of doing it. अच्छा, और ये सर प्राइमरी एजुकेशन जो अफ्रीकन पीपल करते हैं वो क्या उन लोग अपना लैंग्वेज भी कुछ उन लोगों का होता है या बस इंग्लिश से ही? No, they have their own language also. They teach their own language also, but that is only for the primary section only. But after that, but English remains the main medium of instruction from nursery to the last, to the graduation, post graduation. और उनकी एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की रिकॉग्निशन बाहर में है? अब देखिए वो तो उनके एजुकेशन सिस्टम की रिकॉग्निशन उनके कंट्री में ही हो, वही काफी ज्यादा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर के लिए तो नॉर्मली वो लोग बाहर चले ही जाते हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ एक्वायर कर ही लेते हैं एजुकेशन जब जाना होता है। प्रसाद साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? प्रसाद साहब। सर, वन मोर क्वेश्चन। या हाँ जी सर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इमिग्रेशन ऑफ इंडियन टू गाना? परसेंटेज ऑफ immigration to Ghana by from India? No, I cannot tell you. I mean, total number of people staying is only 35 to 40,000 Indians in Ghana. अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट पीपल दे आर ऑन द बिजनेस, basically Indian, whether Indians, then there are Lebanese and Chinese. They are the most people who are there in the businesses in Ghana. Thank you, sir. Thank you. प्रसाद साहब, आप कुछ बोल? हाँ जी हाँ, बोलना तो चाहता हूँ। आज का प्रोग्राम आपके डिजायर पर ही बेस्ड है। जी हाँ, मैं इसीलिए बड़ी उत्सुकता से अपने समय के लिए वेट कर रहा था कि मेरे मन में जो शंकाएं थी जी और जो कौतूहल था पहले तो बड़ी जोर से बढ़ा। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव जो इंफॉर्मेशन मिली हमको, सब कुछ पॉजिटिव, एवरीथिंग जिसको सराहनीय हम समझते हैं, हर चीज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं सब पॉजिटिव लगे। एक प्रश्न जो मन में उठ रहा था कि जो कंट्री इतना समृद्ध है नेचुरल रिसोर्सेज में, गोल्ड उसके पास है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, मैंगनीज है, सिल्वर है, क्या नहीं है? और तब भी उसको, जैसा कपूर साहब ने कहा कि उसको IMF पर वेट कर ले के लोन की जरूरत पड़ती है, मतलब उसको बोरो करने की जरूरत पड़ती है। तो बोरोविंग भी है और इसके जितने रिसोर्सेज हैं। फिर कपूर साहब ने ये भी कहा कि गोल्ड जो जाता है वो फिर उसके पैसे आते नहीं हैं। नहीं आते। तो ये भी बड़ी विडंबना है
कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ठीक होने की ज़रूरत थी, वही ठीक नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये समझेंगे कि वहाँ के कुछ मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है और लीडरशिप प्रॉब्लम भी होगा। लीडरशिप प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त होगा कि लोग इतनी इतनी जो हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच की खाई है भी। ये बताया नहीं उन्होंने कितनी बड़ी खाई है, लेकिन ये मालूम हो गया कि ज़्यादा लोग कमज़ोर हैं, कम लोग मजबूत हैं इकोनॉमिकली, ये तो मालूम हो गया। बिल्कुल। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि इतनी गरीबी क्यों? छोटा सा देश नहीं, बल्कि देश तो बड़ा ही है, यूपी के बराबर आपने कहा। फिर आपने कहा कि केरला के बराबर इसकी संख्या होगी, शायद 2.3 करोड़ की बात कही आपने। बिहार में 11 करोड़ लोग हैं, छोटा सा प्रदेश है। तो ये हम सोच रहे थे कि इतनी गरीबी को साथ लिए हुए इतने अमीर देश क्यों इसको ढो रहे, इतनी बड़ी गरीबी को क्यों ढो रहा है? इसके यहाँ के लोगों को तो मैं समझता हूँ कि अभी आपने कहा एक बैंक मैनेजर को 4 लाख रुपए का आमदनी होती है, हाँ जी। तो इसको तो 10 लाख या हम तो ऑर्डिनरी लोग की आमदनी होनी चाहिए, इतना रिसोर्सेज है। तो अब ये विडंबना थी, तो फिर हमको अपने आप ही इसका हमको इसका जो उत्तर है प्रश्न का अपने आप को ही मिला। अब देखिए हमारा देश है बिहार प्रदेश है, आप कपूर साहब पंजाब के रहने वाले हैं। बिहार के बारे में आप सुने होंगे कि 40% ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज आर लोकेटेड इन बिहार एंड झारखंड। अब झारखंड पड़ गया है, तो दोनों इलाके जो स्टेट था, तो हम लोग पूरे देश का 40% रिसोर्सेज पेट में रखे हुए थे। बिल्कुल। और तब भी देश के सबसे गरीब प्रदेश हम ही थे। तो लगा कि ठीक वैसी ही स्थिति गाना की है। बिल्कुल। इतना सारा अनुभव, इतने सारे अच्छे लोग हैं। और डिसिप्लिन के बारे में तो आप लोग सब लोग पहले भी बोल चुके हैं। अमिताभ जी से जब कुछ पुरानी हमसे पहली बात हुई थी, इतनी तारीफ की उन्होंने, हमने उस तारीफ को पूरे दुनिया भर में जितने हमारे रिलेशन हैं सबको बताना शुरू किया। अभी विनायक जी को हमने कहा कि तुम जल्दी से लगाओ, सुनो। बेटी तो हमारी अमेरिका में है, वो सुनी होगी जरूर, क्योंकि कल के प्रोग्राम में भी थी। वैसे आज उसके यहाँ शायद पार्टी थी। तो अच्छा, ये भी बताया कि आप बहुत मतलब वहाँ एक भाषा है जो हर गरीब अमीर सब बोलता है, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा। बिल्कुल। अच्छा, और डेथ को इतना सेलिब्रेट करते हैं, ये थोड़ा सा अनुमान तो हम लोगों को है। क्रिश्चियन कम्युनिटी में, रोमन कैथलिक्स में हमने भी देखा है। हमारे बॉस थे, क्रिश्चियन थे, उनके लड़के का जब डेथ हुआ तो वो मेरे लिए पहला अनुभव था। बॉम्बे हम जा सकते मिले थे, तो वहाँ पर तो एकदम सब जो मतलब मरने का सेलिब्रेशन हमने देखा हुआ है। सब कोई वाइन पीते हैं, सब लोग अच्छे ड्रेस पहन करके सेरेमनी में आते हैं, रहते हैं, ये यहाँ पर देखा हुआ है। और ये एक तरह से हम लोगों के रिलीजन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम डेथ के बाद हम जरूर एकदम अपने मॉर्निंग जो है वो बहुत प्रदर्शित करें। है, हम लोग समझते हैं कि हमारे पूर्व जो अच्छे उम्र से मरते हैं उनको बड़ी श्रद्धा से हम लोग समझते हैं कि वो हम लोगों के मार्गदर्शक की तरह वर्तमान रहेंगे डेथ के बाद भी।
वो हमको गाइडेंस देते हैं। तो इन सब चीज़ों को तो, लेकिन यही विडंबना, यही बताइए आपसे, यही हम समझते हैं। मैं तो जब स्टूडेंट था तब आपने ठीक कहा कि निक्रोमा साहब जो थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े अच्छे दोस्त थे। बिल्कुल। तो और अफ्रीका के लीडर्स में मेरे ख्याल से और किसी का नाम भी हम शायद नहीं जानते होंगे, एक्सेप्ट कि साउथ बिल्कुल। अफ्रीका में साउथ नेल्सन मंडेला बहुत प्रोग्रेस हो गए, लेकिन पुराने लोगों में अफ्रीका में, इजिप्ट में जैसे नासन है, नक्रुमा है, घाना में थे, गोल्ड कोस्ट, भूल गए थे कि गोल्ड कोस्ट नाम ही था घाना का। करेक्ट। और तब ये क्यों ऐसा है? ठीक है, आप लोग खुश हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम कम गरीबी में हमें हम खुश हैं, डेथ से फेयर नहीं करते हैं, और रिलीजन के लिए कोई लड़ाई नहीं करते हैं, एजुकेशन भी अच्छा है, पैसा है, बाहर एजुकेशन मिल जाता है, जनरल पब्लिक पीस लविंग है। लेकिन ऐसा भी समझ में नहीं आता है कि इस कंट्री को तो, ये कंट्री तो हम समझते हैं कि यूरोप के कई देशों को मिला करके इकोनॉमिकली मात दे सकती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ, लेकिन तब है कि आज हम सुन रहे हैं कि घाना नाम का एक देश इतना समृद्ध है, और हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं कितने हमारे दोस्त हैं जो जानते हो, कितने हमारे फैमिली मेंबर्स जानते हो इतनी अच्छी बातें। तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ आपने घाना के बारे में बताया। अब हम लोग अब आप समझ रहे हैं कि जैसे क्यों सभी देशों की नजर अफ्रीका पर पड़ी हुई है। बिल्कुल। सब लोग खोज रहे हैं कि कोई नया मुल्ला मिले बिल्कुल बिल्कुल। उठा के ले हमें। और मैंने सुना है कि चाइनीज का बहुत काफी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, पता नहीं आप यहाँ चाइनीज आए हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ पर भी काफी ज्यादा चाइनीज आए हैं। यहाँ पर जैसे आप बताएं, चाइनीज मतलब पोर्ट यहाँ पे चाइनीज ने करीब करीब मतलब चाइनीज ने ही बनाया है नया पोर्ट। तो मतलब चाइनीज तो आपको मालूम है वो फ्री में कोई काम करते नहीं है। डेफिनेटली दे हैव गिवन द बिग लोन टू दीस पीपल, एंड डेफिनेटली विद द थिंकिंग कि मतलब पूरा कब्जा इनका हो जाए करके। हाँ, लेकिन एक दूसरा कंट्री है, हमारे मित्र रहते हैं वहां पर, अभी तो नहीं है, वो माइनिंग इंजीनियर थे जाम्बिया में। तो वो बताते थे कि वहां तो राह चलते कोई सेफ नहीं है, और कोई भी आदमी किसी समय गैंग्स के वायलेंस इतने ज्यादा हैं। थोड़े दिन 2 दिन के लिए शायद जाम्बिया में रुका था, तो हमें तो बड़ा हॉरिफाइंग पिक्चर मिला था। आप जैसा बता रहे हैं घाना का, इसके ठीक उल्टा मिला था जाम्बिया के बारे में। हाँ, आप कहाँ गाम्बिया बोल रहे हैं या जाम्बिया के लिए? जाम्बिया। हाँ, जाम्बिया, इट इज ऑन द ईस्ट कोस्ट, तंजानिया और इसके बीच में है जो। हाँ, तो वो बड़ा वायलेंस है वहाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, करेक्ट, और आप सही बोल रहे हैं। तो अच्छा लगा। तो आप लोग और रिसर्च करिए, हम लोगों को कुछ अगल बगल के कंट्रीज के बारे में। बड़ा अजीब सा लगा, देखिए कितना बड़ा कंट्री है, निगर है और ये सब, तो इतनी दिनों के बाद भी ये सब अभी आजाद नहीं करते हैं। एक तरह से अभी इनको करप्शन खा चुका है, मतलब अगर देखा जाए तो ऑन द टॉप, द करप्शन ऑन द टॉप इज जस्ट ईटिंग अवे देम। हमने इसलिए हमने कहा कि हमको अपने प्रश्न का जवाब खुद ही मिला जब हमने देखा कि बिहार जो है इतना रिच है, सब कुछ इसके पास है, लेकिन सबसे गरीब प्रदेश यही है। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत क्या करें, बहुत फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को बहुत बड़े, और अमिताभ जी की वजह से हम लोगों को ये ज्ञान मिला आपके थ्रू, और उनके लड़के अमितेश जी के थ्रू। बहुत अच्छा लगा। मैं तो मुझे भी काफी अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर, और इतने सब विद्वान लोग, स्कॉलर्स लोगों के बीच में बैठकर मेरे को एक बार बोलने का मौका मिला। अमिताभ जी ने मेरे से रिक्वेस्ट की, तो मुझे लगा आपने मुझको पहले बात तो इंक्लूड किया, दैट इज इटसेल्फ अ बिग थिंग फॉर मी, और दूसरा मुझको आपने मौका दिया इन लोगों से बात करने का। कितने वर्षों से हैं? हाँ जी। कितने वर्षों से हैं? 15 साल हो गए मुझको।
15 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ से जाने के बाद बहुत लोग वहां पर बस भी जाते हो? हाँ, काफी लोग बस जाते हैं, जिनको यहाँ अच्छा अभी जहाँ यहाँ जिनको यहाँ अच्छा लगने लगता है वो नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। आप जितनी बातें बताई हैं तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब एक चीज जो मैंने आपसे शेयर नहीं की वहां पे, एक दो चीजें का और भी अच्छी है। जैसे इंडिया में अभी भी मतलब इतने अच्छे अच्छे टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, जो जैसे आपके वोडाफोन हो गया या एयरटेल हो गया, जो भी है, रिलायंस का जियो आ गया अभी पर, लेकिन यहाँ पर भी नेटवर्क इतना बढ़िया। देखिए आपके साथ में इतनी अच्छे से बातें कर रहा हूँ, कभी भी एक हाँ बार भी देखिए, कोई बिल्कुल सही ऑपरेटर बात। मोबाइल सर्विसेज सिस्टम्स आर वेरी वेरी गुड, इंटरनेट इज वेरी गुड, पावर पोजीशन इज वेरी गुड, वी डोंट सी एनी पावर फेलियर। और एक जमाना था 2014-16 में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, उसके बाद में अभी देयर आर नो पावर फेलियर्स। क्वालिटी ऑफ द वाटर इज वेरी गुड, नेचुरल। मतलब अगर हम लोग, अमिताभ जी आपको खुद बताएंगे, अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग 10 साल रह गए हैं तो हमने सोचिए अपने 10 साल और बढ़ा लिए हैं जिंदगी के। हाँ ना, वाह वाह, अच्छा, बिल्कुल सही बात। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, पोल्यूशन इज बिल्कुल। जीरो। हाँ, और नो जो हर चीज पॉल्यूशन, हम लोग जो वाह। खा रहे हैं वो नेचुरल खा रहे हैं, अभी तक का यहाँ पर केमिकल पहुंचे नहीं है। जिस तरह हाँ, से इंडिया में मतलब जीएम सारे आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वगैरह, वो सब यहाँ पर अभी पहुंचे नहीं है। जो भी है यहाँ पर, इट इज जो पहले वर्जिन लैंड की जो उपज होती है उस तरह की उपज है। तो सारी जो हरी सब्जियां हो गए, ये हो गए, जो हम लोग खा रहे हैं, दे आर वेरी नेचुरली प्योर। उस तरह से हम लोग काफी। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, एकदम बहुत सारी चीजें ऐसी अच्छी लगी आपने बताए। एक बताया वो भी याद कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि शायद बच्चे होने के बाद शादी करते हैं। हाँ। हाँ, ये भी और वो भी बच्चे भी, शादी बच्चे भी मैंने ज्वाइन करते हैं, मैं पेरेंट्स के ज्वाइन साथ। करते हैं बच्चे के सामने। हाँ। और दूसरा भी बड़ा पैथेटिक लगा कि यंग लड़का को ये हो जाता है तो रो भी रहे हैं और सेलिब्रेशन भी हाँ, मना रहे एक हैं। तरफ से उनका सेलिब्रेशन भी चल रहा है। हाँ। डॉक्टर एसके शर्मा कुछ पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। जी एसके जी शर्मा सर, हाँ, मैं अपना परिचय भी थोड़ा दीजिएगा जी शर्मा साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, मैं डॉक्टर मिश्रा हूँ और हाँ, मैं प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ और ये अरे नागेश जी वाह, के जरिए मैं इसमें जुड़ा हूँ। अरे तो वाह। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मेरा एक पूछना था जो मेरे पेशे से संबंधित है कि वहाँ की हेल्थ केयर व्यवस्था कैसी है, दैट इज हाँ, नंबर 1। और नंबर ये 2 बहुत जानना चाह रहे बहुत थे, अच्छा जैसे आपने प्रश्न। कहा कि खाना पीना काफी अच्छा है, साफ सुथरा ऑर्गेनिक लोग खाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो डिजीज का प्रोफाइल होगा तो वो जरूर कुछ मतलब इन्फेक्शन कम होगा और जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज ज्यादा होंगे। तो ये मेरा अपना सोचना है, आप जरा शायद उस पर ज्यादा बताएंगे। दूसरे मैं सुन रहा था कि लगातार पूछ रहे हैं कि वहाँ गरीबी क्यों है और क्यों, मुझे लगता है कि आपने शायद एक स्तर पे इसका जवाब भी दे दिया कि करप्शन। यानी जैसे नाइजीरिया है, नाइजीरिया में तेल इतना ज्यादा है, तेल उसको बाहर लोग भेजते हैं और वहां से फिर वापस लाते हैं उसको प्रोसेसिंग करके। तो ये लीडरशिप की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ये करप्शन जो है वो परवेड करके नीचे तक गया हुआ है। बस ये 2 बातें मैं करना चाह रहा था, बिल्कुल धन्यवाद। सही बात। बिल्कुल ठीक बात। तो डॉक्टर साहब कमिंग टू द आपने हेल्थ सवाल। सिस्टम, जी। मैं जवाब दूं? जी हाँ। हाँ जी। डॉक्टर साहब आपका सवाल बिल्कुल सही है, जो कि मैंने टच नहीं किया था। एक्चुअली आई वांटेड टू टच, बट आई डोंट नो हाउ आई फॉरगॉट इट टू मेंशन इट। हेल्थ सिस्टम यहाँ का अगर देखा है तो अफ्रीका के कंपेयर में घाना हैज गॉट अ बेटर हेल्थ केयर सिस्टम इन अफ्रीका, बट एज कंपेयर टू इंडिया, नो। डेफिनेटली यहाँ पर हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उनमें आपको आईसीयू मिलेगा, उनमें आपको अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट मिलेंगे, वो सब मिलेगा। और लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी यहाँ के जो है, यहाँ के डॉक्टर्स की है। जो डॉक्टर यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड इन डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी। उनकी डायग्नोस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। व्हाट द वे दे डायग्नोज, नॉर्मली इट इज रॉन्ग। मतलब अगर मैं इस तरह से आपको समझाना चाहूँ कि इंसान अगर बीमार पड़ जाता है, या हम लोग जो एक्सपर्ट्स वगैरह कोई बीमार पड़ता है, हम लोग उसको नॉर्मली 2 या 3 दिन वेट करते हैं उसको देखने के लिए, यहाँ पर ठीक हो जाता है। अगर नहीं उठा है तो नॉर्मली वी सेंड इट बैक टू इंडिया टू गेट इट ट्रीटेड। क्योंकि यहाँ ओह। पर नॉर्मली अगर यहाँ पर कोई अगर किसी की डेथ होती है तो उसकी बीमारी पे डेथ नहीं होती है, इट इज हैपन बिकॉज द रॉन्ग मेडिकेशन।
अच्छा। हाँ जी। हम्म। नंबर टू, कमिंग टू हेल्थ प्रोफाइल। नॉर्मली यहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी है, मतलब चश्मा पहनने वाले तो बहुत कम लोग देखे मैंने। चश्मा मतलब आईज आर वेरी गुड फॉर दीज पीपल। पर लेकिन इनके खाने पीने के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि ये लोग कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा खाते हैं, मतलब ये लोग जो पेड़ के नीचे जो कंद मूल वगैरह रहते हैं ना, वो उनका काफी सेवन करते हैं। मेज काफी जाते हैं, इनके फूड में कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा है। वो होने के कारण दी पीपल आर हैविंग हाईली डायबिटिक और हैवी वेट। वेट भी काफी ज्यादा है डायबिटिक होने के कारण। दे गॉट अ लाइफ टाइम डिजीज ऑफ द डायबिटीज एंड बाय ब्लड प्रेशर। तो ये काफी ज्यादा बीमारियां हैं इनको, पर ट्रीटमेंट्स आर नॉट अवेलेबल एज इट शुड बी। सब करप्शन से रिलेटेड। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रश्न था। सिद्धार्थ जी बहुत अच्छा प्रश्न था। आप दोनों हमारे ग्रुप में आ जाइए। आप लोग बहुत अच्छा और बहुत संतुलित प्रश्न पूछा आप लोगों ने। तो हमारे ग्रुप को दो विद्वान मिलेंगे और हमारे बीच में नागेश जी हैं। नागेश जी बोलिए। नागेश जी, उमेश जोशी जी, यस। आपको पूछना है? हाँ बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। और मैं भी हाँ। एक्सपेक्ट कर रहा था कि नागेश जी बोलेंगे, मैं समझता हूँ बोलेंगे भी। बहुत विद्वान है। मैं इस बात से कई बार रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ नागेश जी से कि क्वांटम फिजिक्स, जो मुझे बड़ी डिफिकल्ट लगती है, उसके कुछ बताएं, लेकिन उनको अभी तक उन्होंने नहीं बताया। और बताएंगे नागेश जी से मैं बताएंगे। ऐसे भी प्रभावित हूँ, जैसे चंद्रेश खान साहब हैं, अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब हैं, आप हैं, और भी कई लोग हैं। तो आज हमारे कपूर साहब आए तो बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो अगर हम कपूर साहब की परमिशन से ही कि कल्चरल डाइवर्सिटी दोनों कंट्रीज में है, घाना में और इंडिया में। कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, दोनों ही अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। बिल्कुल एग्रीकल्चर इकोनॉमीज दोनों की हैं। और आपने बताया कि बड़ी लैंड फर्टाइल है, इंडिया की भी बहुत फर्टाइल है। जैसे अखौरी महेश्वर प्रसाद साहब ने कहा कि बिहार की तो और भी अच्छी लैंड है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। और फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम है दोनों का, और यूथफुल पॉपुलेशन है। मतलब हमारे यहाँ भी यूथ काफी लार्ज नंबर में है, और घाना में भी है, और दोनों खाने में में भी। काफी पोटेंशियल है आने वाले बिल्कुल समय में लीड करने का। लेकिन अगर डिफरेंस देखें तो ज्योग्राफी, मैं समझता हूँ कि ये ये घाना वेस्ट अफ्रीका में है, इंडिया साउथ एशिया में है। काफी कुछ लैंड ज्योग्राफिकल लैंडस्केप डिफरेंट हैं, क्लाइमेट डिफरेंट हैं, इकोलॉजिकल फीचर्स डिफरेंट हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दोनों डाइवर्सिफाइड है और इंडस्ट्रियलाइज है इंडिया। जबकि घाना की फोकस ऑन एग्रीकल्चर है, नेचुरल रिसोर्सेज पे, वो भी वो टेप नहीं करते। फिर करेक्ट पॉपुलेशन साइज, हिंदुस्तान भरमार है और वो तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से तो करेक्ट। वो बेटर है। रिलीजियस कंपोजिशन हम लोगों की सनातन धर्म है, और ये इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। वहाँ पर भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में तो बताया ही आपने। तो बिल्कुल और ऑफिशियल लैंग्वेज भी, ऐसे कि आपने कहा कि वहाँ हिंदुस्तान से अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल। यहाँ भी हम लोग भी नाच करते हैं कि हम लोग भी अच्छा अंग्रेजी बोलना जानते हैं। तो ये तो ये तो कुछ है। सर, मेरा हाँ आपसे जी। एक प्रश्न ये होगा कि जैसे कि हमारी एक बहुत अच्छी लिगेसी है ना। तो हम उस पे कभी कभी प्रेजेंट हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बड़ा नाज है कि हम ये थे पास्ट में। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो बताएं। दूसरे, अगर कोई यूथ है ना, जैसे मेरे रिलेटिव्स ही हैं यहाँ पे, और इंडिया में भी जॉब की बड़ी खराब पोजीशन है। इस साल तो आईएमएम के लड़कों को भी जॉब नहीं मिल रहा है। वो उनके एलुमनाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास कंपनी में कोई जॉब है तो हमें बताएं। ब्रेन ड्रेन इंडिया से काफ़ी है। तो अगर मेरे कोई रिलेटिव्स मुझसे पूछें कि अमिताभ जी के बेटे और आप कपूर साहब जैसे लोग जो बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं, घाना में हैं, तो क्या मैं उनको सजेस्ट करूं कि वो घाना में जॉब तलाश करें? क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे कपूर साहब?
हाँ जी। तो आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? एक बार मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। आपने कुछ पहले पूछा था, जॉब के पहले और कुछ पूछा था। लिगेसी जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, हमारे यहाँ रामानुजन थे, हमारे यहाँ हाँ जी, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, हमारे यहाँ हाँ जी, आर्यभट्ट थे, मतलब एक ऐसे से। और हम कहते हैं कि गार्गी ऐसी महिला थी, और हमारे शंकराचार्य थे। ऐसे लोग हमारी करेक्ट, लिगेसी है हम्म। कि हम उस पे प्राउड कर सकते हैं। क्या घाना की है कुछ? हाँ, तो नो कमिंग बैक टू घाना, मतलब घाना का ऐसा है कि जहाँ तक का ये लोग प्रयोग करते हैं, जो मैंने आपको इसमें बताया था कि इनके 7 जो लीडर थे, दो वर इन्वॉल्व इनटू द फ्रीडम फाइटर, तो उसके बारे में वो जानते हैं, जिसमें कि एनकुमा के बारे में मुझको नाम मालूम है, और बाकियों का मैं नाम नहीं मेरे को मालूम है, या मैंने कोशिश भी नहीं की जानने की। नंबर 2, यहाँ पर एक और चीज है जो कि मैंने बीच में आपको नहीं बताई, कि यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन में देयर इज किंग। अरविंद, तो हर एक बहुत रीजन अच्छा की काट रहा है। किंग, मतलब जो इवन तो यहाँ पर जैसे ब्रिटिश रहते थे, फिर भी वो रीजन में एक एक किंग थे। जैसे हमारे यहाँ जमींदारी होती थी पहले, फिर राजस्थान में जैसे राजा मानसिंह रह गए, फिर झांसी के और महारानी थी, या जो भी होगा, हर तरह के एक किंग या क्वीन रहती थी। वैसे भी यहाँ पर किंग वाला सिस्टम था। जैसे अशांति रीजन हो गया, वहाँ के किंग अलग हो गए, बोरनॉफो के किंग अलग हो गए, गा करके जो एरिया उसके अलग किंग हो गए। तो उनकी लीगेसी चलती आई है। तो वो जो सिस्टम है वो अभी भी चल रहा है, इवन तो यहाँ पर डेमोक्रेसी होने के बाद में भी। मतलब जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक वे से जो पार्लियामेंट चुनी जाती है उनसे चलती है एडमिनिस्ट्रेटिवली, पर वो पर्टिकुलर रीजन में वो किंग को अभी भी वैल्यू देते हैं। और वहां पे जो किंग रहता है उसकी, मतलब मोस्ट ऑफ द लैंड पर पर्टिकुलर रीजन बिलोंग्स टू देम। तो आपको कोई लैंड वहां पे परचेज भी करना है तो यू हैव टू टेक द सैंक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर किंग। उसको बोला जाता है स्टूल, यहाँ पे दे कॉल इट स्टूल। तो स्टूल से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर बाद में आपको यू कैन बाय द लैंड एंड ऑल। वो लीगेसी इनकी यहाँ की किंग के थ्रू चलती है, रादर देन जैसे हमारे यहाँ पहले हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर पर्सन वगैरह के हिसाब से। तो वो लीगेसी चलती आ रही है। और जहां तक का एम्प्लॉयमेंट वाले के बारे में बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट नॉर्मली क्या होता है कि वहां पर जो भी कंपनियां हैं, दो मोस्टली द इंडियन कंपनी, दे प्रेफर टू ब्रिंग देयर पीपल फ्रॉम इंडिया। वो इसीलिए क्योंकि उनका कम्युनिकेशन आसान हो जाता है, एंड दे नो हाउ टू डू द थिंग्स बेटर इन इंडियन वे। क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं नॉर्मली दे वर्क ऑन टू द इंडियन सिस्टम्स ऑफ वर्किंग। जैसे आपका P&L हो गया या MIS हो गया, जो भी हो गया, वो इंडिया के हिसाब से बनाते हैं। तो दे लाइक टू कॉल द पीपल फ्रॉम इंडिया एंड दे एम्प्लॉय इट। So most of the Indian companies, they keep the Indian people. Apart from that, some of the Ghanaian company also they keep the Indian, because they know that Indians are very good into the accountancy, especially accountancy, and number 2 in the engineering. So they also bring the quite good number of the Indian people for their works, फैक्ट्री रिलेटेड या जो भी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, सर्विस रिलेटेड हो गया। इवन फॉर द कंपनी लाइक MTN, दे हैव गॉट अ गुड नंबर ऑफ इंडियन पीपल, दैट इज मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह। तो स्कोप तो हैं, और स्कोप होने के साथ साथ भी देयर आर सम कंसल्टेंसी इन इंडिया who deal only for the African employment. So they are the people who are specialized to help the people who want to get into the job into the Africa especially. वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा सर, वहाँ डॉक्टर कपूर जमीन साहब, कैसे आप है? जमीन का रेट कैसे है? जमीन का रेट अगर आप आंकड़ा में पूछेंगे तो इट विल सेम थिंग लाइक आपके पटना के हिसाब के रेट होगा। पर अगर आप थोड़ा दूर चले जाएंगे तो बहुत सस्ती जमीन, मतलब आपको 1 एकड़ आपको 2 या 3 लाख में 1 एकड़ आराम से मिल जाएगी, थोड़ा सा बाहर हाँ, जाएंगे तो। अच्छा, 2-3 रुपए में। अच्छा। थैंक यू कपूर साहब, बहुत अच्छा आपने भाषण दिया। और मैं चाहूंगा कि सर कि आपने इतनी सहजता से दिया कि अभी बहुत जिज्ञासा है आपको, आवर्स एंड आवर हम सुन सकते हैं। एक इनबॉर्न टैलेंट है आपका। थैंक यू वेरी मच। और अमिताभ जी, कपूर साहब को आगे भी लास्ट लाइएगा। क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए। कपूर साहब, लास्ट क्वेश्चन हाँ यही सर, है बोलिए। कि वहां का क्राइम रेट क्या है? If you ask me the crime rate,
crime rate is not as in India, because we don't find much of the stabbing or killing or shooting. No, we don't hear. जैसे normally, I'll tell you this. I'll just explain on this particular. Thank you. एक मिनट मैं आपको बताऊंगा. There were two different things. One is Nigeria, one is Ghana. The crime rate in Nigeria is very high. If I rate Nigeria as 100, in Ghana it will be only 2 or 3. अच्छा. हाँ जी. डॉक्टर एसके मिश्रा जी और डॉक्टर ये सिद्धार्थ जी, आप लोग और जो भी न्यू लोग आए हैं और हमारे ग्रुप में जरूर आ जाएं, क्योंकि वी आर हंग्री फॉर दिस ग्रेट स्कॉलर्स. विनय जी भी हैं और प्रीति मैम यू वांट टू आस्क समथिंग? प्रीति मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगी घाना के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत कुछ बताया, मैंने बहुत अच्छे से सुना और बहुत कुछ जानकारी भी मुझे मिली. थैंक यू. आते रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा. रोहित दास फ्रॉम पूना. रोहित दास जी हाउ आर यू? हाँ, बहुत दिन बाद. बहुत अच्छे मतलब शिल्पकार और बहुत अच्छे गायक हैं ये, और इन्होंने हमारा पूना में कोर्स किया था और बहुत अच्छे मतलब ये बहुत उत्सुक रहते हैं हर चीज को जानने के लिए, बहुत उत्साही हैं रोहित दास जी. हमारे बाकी लोग नहीं आए, ये हमको बड़ा वो लगा क्योंकि इतना सुंदर टॉपिक था आज का. बहुत बढ़िया. तो यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं, बहुत अच्छा जानकारी मिला सर, बहुत बढ़िया. कोई क्वेश्चन रहा नहीं. आई एम रिलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो काफी एग्रीकल्चर की भी काफी अच्छी बातें हो गई. हाँ, एग्रीकल्चर आप यदि वहाँ घाना में करोगे ना, लैंड भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, तो यू विल बी मिलियनियर, क्योंकि वहाँ पे जो जितना महंगा सब्जी बिकता है, अनाज बिकता है, और ये तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है. हमने जैसा महसूस किया वहाँ पर. बहुत बढ़िया. और हाँ, और जैसे अंग्रेजी की बात रही, तो अम्बरीश के घर में जो मेड सर्वेंट काम करती है, हम लोगों से अच्छा अंग्रेजी बोलती है. वो बहुत अच्छा बोलती है. और उसके अभी वाली जो प्रेजेंट मेड सर्वेंट है, उसके पहले की जो मेड सर्वेंट थी वो नर्स थी, और उसने एक कोर्स करके अभी यूके जा रही है. अरे यूके जा रही है, और डॉक्टरेट करने का प्रयास कर रही है. सर्वेंट. तो हाँ, दे आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी लर्नेड, वेरी सिंपल पीपल. किसी का नुकसान अब बोलना नहीं पड़ता कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं किया, ये सब कुछ नहीं. अपने मन से, अपने ईमानदारी से करती है. राकेश जी यू वांट टू आस्क समथिंग? राकेश जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? राकेश जी, अपना परिचय दीजिए, पूछिए. राकेश जी, अच्छा ठीक है, वो नहीं पूछना चाहते हैं. और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें. और सर ये बताइए, यदि किसी के पास ऑप्शन हो कि वो सिंगापुर भी जा सकता है और घाना भी जा सकता है, तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत सरल सवाल है सर. सिंगापुर चाहिए. अच्छा. नहीं, तो पहले सिंगापुर चाहिए. टोटली अपोजिट कंट्री. अच्छा, सिंगापुर. ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा. हाँ सर, राकेश बोल रहा हूँ मैं. हाँ जी, बोलिए. सॉरी, मैं देर से पूछ रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में 1 मिनट के लिए. हाँ. सर, जैसे मैं डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब करता हूँ पिछले लगभग 15 सालों से, और मुझे 2 अपॉर्चुनिटीज मिली घाना में जॉब करने के लिए. एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, RAF करके, वो गुजरात, बेसिकली उसके जो ओनर्स लोग हैं वो गुजरात के हैं. तो मैं इसलिए नहीं गया, घाना की पता नहीं कैसा माहौल होगा, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के नाम से एक डर लगता था. और उसी ऑर्गेनाइजेशन ने फिर मुझे दूसरा अवसर दिया कांगो के लिए, DR कांगो के लिए, किंशासा में. लेकिन मेरा चूंकि एक्सपोजर नहीं था, तो मैं वहाँ गया नहीं, और मैं अभी जम्मू कश्मीर में हूँ. लेकिन आपसे बात करके जो अंदर से उत्साह बना कि वहाँ पे हम जैसे लोगों के लिए काम करने के लिए अवसर भी हैं,
और जो एक अंदर का डर है वो नहीं है, जो अनसीन कह सकते हैं, जो डर बना हुआ था दिमाग में, वो बहुत हद तक दूर हुआ। तो एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सर मैं अमिताभ सर के माध्यम से अपनी सीवी शेयर करूंगा फर्दर। अब मैं इंटरेस्टेड हो गया हूं कि अगर घाना जैसी जगह में मुझे काम करने का अवसर मिले तो मैं काम करने के इंटरेस्टेड हूं, और कोई लिंक बनता है, किस तरह की संभावनाएं बनती हैं, तो आप मेरा सपोर्ट करें, आभारी रहूंगा। जरूर। राकेश भट्ट इज एक्सपर्ट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट्स हैं, और हमारे यहाँ हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा स्पीच भी देते हैं, और कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट पे उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। बहुत अच्छे, बहुत कर्मठ हैं, बहुत ज्ञानी हैं। तो जैसा कि कपूर साहब ने बताया था कि बहुत सारे अफ्रीकन एजेंट इस संबंध में बहुत अच्छा सलाह देते हैं, और आपके सीवी को देख करके उस हिसाब से आपकी योग्यता को कम पैसे में वहाँ पे यूटिलाइज करवाते हैं। इन एडिशन टू दैट ऑल्सो हम लोग मतलब कपूर साहब और वहाँ के और बाकी इंडियन लोगों को आपका सीवी देंगे, जिससे कि आपका वहाँ रहने का ख्वाहिश पूरा हो सके। हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो कपूर साहब इस संबंध में क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूँ, एक मिनट। राकेश जी, ऐसा है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि देयर आर स्पेसिफिक जो कंसल्टेंट्स हैं, दे फोकस ओनली ऑन अफ्रीका, और जो कि और हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को जैसे इंडस्ट्री के लिए लोग चाहिए रहते हैं, तो वी अप्रोच दोस टाइप ऑफ पीपल कि जिससे कि हमको जनरल पब्लिक में से नहीं ढूंढना पड़े। तो दे आर एबल टू कनेक्ट बिटवीन द रिक्वायर्ड पीपल एंड द पीपल हु रिक्वायर टू कम, and they are able to process the candidature, and they don't charge anything. They don't take even a single penny from the employee. They take the money only from the employer, and they don't charge anything to the candidate. अरे वाह, बहुत अच्छा सर। तो आप ऐसे कुछ कंसल्टेंट्स का नाम हमारे वेबसाइट में डाल दीजिए। प्रीति मैम, हाँ प्रीति मैम के भी कुछ और रिलेशन हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, और घाना ऐसे स्वस्थ और अच्छे जगह पे रहेंगे तो इन लोगों का मेंटेलिटी भी बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा शांति मिलेगी। खासकर इंडिया की तुलना में तो बहुत शांति मिलती है। बहुत 2 महीने में तो हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और कपूर साहब का चेहरा देखिए कितना मुस्कुराता हुआ और कितना अच्छा है और खूब लोग वहाँ के लोग खुश रहते हैं, हमेशा टेंशन रहते हैं कोई कुछ। हाँ जी अमिताभ सर, जैसे मेरा जो कोर एरिया है, एक्सपर्टीज कह सकते हैं जिसमें है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ मैं वाटर एंड सैनिटेशन में काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। वाटर एंड सैनिटेशन में भी अभी मैं एडीबी के साथ काम कर रहा हूँ त्रिपुरा गवर्नमेंट के लिए, वॉश एज ए वॉश स्पेशलिस्ट, एंड जम्मू कश्मीर में मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ जी, स्पेशली वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पे। तो 6 साल मुझे लगभग वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के तौर पे हो गया, और 6 साल ही मुझे एज ए वॉश कंसल्टेंसी में हो गई, और 8 इयर्स के आसपास मेरा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है। तो मैं इन्हीं पेरीफेरी में घूम के रहा हूँ अपने 14-15 साल की जो मेरी लाइफ है प्रोफेशनल। तो मैं सर से जानना चाहूंगा, क्या इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज किस लेवल की हैं सर? मैं ये जानना चाहता हूँ। No, there are good opportunities here. There is one big company called Zoom Leon. They are the best people in Africa, in Ghana. Those who are managing the waste, from solid waste to liquid waste to the and the recycling of the waste. They are working in a very big way, and they are very directly connected with the government and all. So it's a very big company, and they are a very good pay master also here. Okay, great. Very good. Yeah. मैं अमिताभ सर को शेयर करूंगा अपनी सीवी, और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको शेयर करें वो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि कपूर साहब, हमारे ग्रुप में करीब 300 लोग हैं, ये सभी के बेनिफिट के लिए आप 1-2 कंसल्टेंट्स का नाम हमारे ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप लोगों से सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझको। और एक मिनट हमारे बीच में हमारे एक और बुजुर्ग हैं, चंद्रेश्वर खान साहब। वो बहुत अच्छा फिनिशिंग टच देते हैं और बहुत अच्छा ब्लेसिंग जैसा प्रसाद साहब शुरू में देते हैं,
बीच में जोशी जी कहते हैं और लास्ट में हमारे खान साहब इतना सुंदर अमृत बानी बोलते हैं, वो आपका बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और उसके सीने बिना हमारा रिकॉर्डिंग भी इनकम्प्लीट रहेगा। तो नागेश झा भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैं प्रसाद सर Thank you, sir. चंद्रेश्वर खान साहब से कहूंगा कि अब आशीर्वाद वचन दें। चंद्रेश्वर खान साहब, मुन्ना रानी प्रसाद भी आई थी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना रानी जी बहुत बड़ी स्कॉलर हैं और मैथमेटिक्स की प्रोफेसर रह चुकी हैं। तो अभी मैं चंद्रेश्वर खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिनिशिंग टच दे दें, क्योंकि 8:52 हो गया यहाँ और कपूर साहब भी जाने की मुद्रा में लग रहे हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा कहीं नहीं ये जा रहा हूँ, मैं घर में ही रहूंगा। अमरीश है अच्छा मेरे पास में, अभी और कुछ नहीं, हम लोग अमरीश, सिर्फ चाय चाय पियेंगे बैठ के। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा बहुत ये बहुत चंद्रेश्वर, धन्यवाद। हाँ अब ये अमृत बानी आपका अमिताभ जी, सुनिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज कपूर का आना हाँ, एक नैसर्गिक घटना है। अरे वाह, ये जो मैं सोच समझ करके बोल रहा हूँ कि जब कभी हम ये बोलते हैं कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सहितम नमामि। ये बोलने का मकसद ये है कि किसी देश को समझना हो तो पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली बायस व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। अच्छा, सुनना चाहिए पैशनेट एंड कंपैशनेट पीपल लाइक मिस्टर कपूर। अरे वाह, अरे वाह, इन्होंने काइंड होते हुए एबिलिटी को रखा ऑब्जर्वेशन और ओमनी प्रेजेंस और रियलिटी के ऊपर में। रियल वर्ल्ड, रियल लर्निंग। सामान्यतया अफ्रीका की जो इमेज है, छवि है, हम लोगों के बीच में बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, तो उसमें घाना भी पिसा जाता है। लेकिन इन्होंने जो तस्वीर दी, इन्होंने जो छवि दी, जो इमेज पोर्ट्रे किया, वो सबके बस की बात नहीं है। और मैंने जो कहा 2 घंटे मैं भी इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अवलोकन कर रहा हूँ, क्योंकि वो एज ए ट्रेनर एंड कोच मेरा काम है कि बिल्कुल कंपोजिट, कंप्लीट, कैंडिड अप्रोच के साथ में इन्होंने चीजों को लाया। और बड़े अच्छे विद्वान और कर्ता जो होते हैं वो उसी एरिया को चुनते हैं जिनमें उनकी पहुंच है। तो इनको जहां नो बोलना था उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। Those who know, they can very clearly say no. यस, तो कपूर साहब अद्भुत, अनोखे, आपके नाम का अर्थ कामदेव होता है और सुंदर तो आप हैं ही। न सिर्फ बाहरी छवि आपकी सुंदर है, बल्कि अंतरात्मा में जो छवि है वो बड़ी अच्छी है। और आपने जिन चीजों को नोट के माध्यम से कहना चाहिए उसको नोट के माध्यम से कहना चाहा, और जिसको ऑब्जर्वेशन के आधार पर कहना चाहिए जैसा है, एज इट इज। ये भाव तभी आता है जब हम में वो पूर्णता होती है। तो आप हम लोगों को भी पूर्णता की तरफ ले जाने का जो प्रयास किए हैं, और इसमें अमिताभ जी का गहरा सहयोग है। गाना को ऊपर 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 हम लोग बहुत सारी चीजों को उड़ा देते हैं। गाना ऐसा ही बना रहे, क्योंकि बहुत सारे देश लुट गए हैं जिन्होंने अपने स्वरूप को, अपने संतुष्टि को, अपने संतोष को खत्म किया। संतोष का खत्म होना, कंटेंटमेंट का आसान है, लेकिन बाद में जो कष्ट होता है वो बड़ा गड़बड़ है। या तो उसको हम बैकवर्ड बना देते हैं या बैकवर्ड लुकिंग बना देते हैं, ये कभी फॉरवर्ड नहीं होंगे। और जब वो फॉरवर्ड होते हैं तो ठीक है, बड़े स्केल में जो करप्शन है वो दिखाई पड़ता है। और जहां भी कॉलोनियल रूल्स रहे हैं और कई देशों ने इनको लूटा है, तो कुछ लोगों की आदत तो ऐसी पड़ गई होगी।
तो आपने जो अच्छी आदतों की बात की, हैबिट, मैं आपको धन्यवाद इसी देता हूँ कि ये हैबिट प्रोएक्टिव हैबिट बनी रहे, और प्रोएक्टिव हैबिट जब बन जाता है तो थोड़ा मीठा भी तो ए बिट इज देयर, थोड़ा यदि और मीठा तो बिट इज देयर, थोड़ा यदि और मीठा तो इट इज देयर। So good habit, inculcating, observing good things. It's not easy. Observing something wrong, that's very easy. Sarcastic remarks are very easy. But choosing the positivity, choosing the completeness comes when we move towards the completeness. मैं जुड़े हुए हाथ से, झुके हुए माथे से और खुले हुए दिल से आपको प्रणाम करता हूँ, और सफेद केस होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूँ। जीवित सर्वम सतम, रमणीय सर्वम वसंतम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके समय के लिए, आपकी शक्ति के लिए। योर टाइम एंड एनर्जी has made us very, very emotional. At the same time, it has increased our knowledge, the complete knowledge about Ghana. Thank you so much and God bless you. देखा आपने, मैंने कहा था ना कि ये बहुत अमृत बढ़िया बानी, लास्ट वाला मेरे- अमृत बानी सुने बिना हम लोग जा नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, इतना अच्छा लगा। डॉक्टर एस.के. शर्मा, नागेश जी, उनको हमारे टीम में जोड़िए, और ये सिद्धार्थ वगैरह सभी के लिए मैं अपना नंबर देता हूँ, प्लीज नागेश जी नोट। से क्वांटम फिजिक्स। हाँ 95 नंबर लिख। नहीं एक्चुअली मैं एस.के. शर्मा नहीं हूँ, एस.के. मिश्रा हैं। वो राष्ट्रीय दूरदर्शन पर भी भाषण देते हैं, तो वो इस मामले में बहुत अनुभवी हैं। तो उनको अपनी टीम में रखिए, MBBS डॉक्टर हैं, और हम लोगों के साथ रहेंगे तो हम लोग को उनका गाइडेंस मिलेगा। तो नहीं, उसके अलावा वो मेकॉन में चीफ मेडिकल ऑफिसर भी थे, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी, हमारे क्लासमेट भी थे। हाँ, तो हमारे टीम में उनका रहना बहुत जरूरी है। तो शर्मा जी, सिद्धार्थ, सभी को मैं अपना नंबर देता हूँ, 9525614973, और नागेश जी से भी आप नंबर ले लीजिएगा 9525614973। और हमने चेष्टा किया, ईश्वर ने सहायता किया। प्रसाद साहब की इच्छा को मैं कभी टाल नहीं सकता। प्रसाद साहब की इच्छा थी, ईश्वर की शक्ति उसमें आ गई। अम्बरीश को मैं चाहूंगा एक बार देखना, वो कुछ तो बोले। अम्बरीश, बिल्कुल अम्बरीश, हाँ अम्बरीश, एज ए फादर आई वांट टू सी यू। हाँ अम्बरीश बेटा, आपको नमस्कार दोबारा से। और घाना के बारे में हमारे लोकल गार्जियन मनोज अंकल ने सब कुछ इतने बढ़िया से बता दिया, तो मेरे बोलने लायक कुछ रहा नहीं। तो वी आर ऑल ग्रेटफुल। और बस एक बात मैं और ऐड करूंगा, कपूर अंकल ने जो बोला था कि घाना इज ऑल्सो कॉल्ड गेटवे ऑफ अफ्रीका। तो घाना इज बीइंग एज गेटवे ऑफ अफ्रीका, एंड वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि फ्यूचर में सब कुछ जैसा हमने प्रोजेक्ट किया है वैसे ही हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं अपने सारे बुजुर्गों से चाहूंगा कि आशीर्वाद दें। हाँ, मैं चाहूंगा धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद। अमरीश जी, कुछ दिनों से मैं हमारे संबंधी, रिलेशंस, दोस्त जो इंडिया से बाहर रहते हैं, कभी कभी संयोग होता है कि 1-2 महीने के अंदर बहुत लोगों से मुलाकात हुई है। तो आप उसी कड़ी में आपसे मुलाकात हुई है अमरीश जी, और हमारे सबों की ही इच्छा है कि आप लोग जो हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो बड़ा नाम कमाते हैं, हिंदुस्तान के लिए भी, अपने देश के लिए भी। ऐसा मैंने देखा है, और ये भी देखा है कि हमारे लोग जहाँ भी गए हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सब जगह उनको सराहना ही मिलती है। कहीं ऐसा नहीं सुना है
कि आपने भी कहा कि हिंदुस्तान के लोग जो घाना में हैं वो अच्छी नज़र से देखे जाते हैं। तो ये मैंने पिछले 2-3 महीने में एक तरफा एक हमारे मन में ऐसा विश्वास बैठ गया है कि हमारे जितने भी हिंदुस्तानी नज़दीकी दोस्त जिनसे भी हमारी बात हुई है, तो इससे इस गर्व तो है हमें कि हमारे लोग जो बाहर जाते हैं वो सबके प्यारे हो जाते हैं, सबके नज़दीक हो जाते हैं। कहीं उनको उनका नेगेटिव इम्प्रेशन कहीं नहीं बनता है। ये बड़ी अच्छी बात है और हम समझते हैं कि आप घाना में आप लोगों की वजह से हिंदुस्तान का नाम बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए। और अपर्णा भी बोलना चाहे, सीमा जी भी बोलना चाहे तो ठीक है। तो ठीक है, बहुत बहुत अवेलेबल नहीं है, सॉरी। अच्छा, ओके ओके, बाहर है वो लोग। ठीक है। तो अब इसके बाद में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद अमरीश और साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही अच्छा बेटा है और अच्छे कपूर साहब लाए, पता प्रोफेशनल ढंग से वार्ता दी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। खान साहब और अखौरी साहब को चरण स्पर्श, कपूर साहब को प्रणाम, जोशी जी को प्रणाम। बाकी रोहिदास जी, आप हमारे अगले मीटिंग में भी आइएगा, आप भी कुछ बोलिएगा। संतोष लोहरा जी, रजिस्ट्रेशन के बारे में भी आप भी बोलिएगा। और हम लोग राकेश भट्ट जी, आप हमारे परमानेंट मेंबर हैं, हम लोग मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम। रोहिदास जी, आपको भी कुछ बोलना है? So we will be listening you also. Thank you. God bless you. Pranam.